Hello everyone, please welcome me to Vision Spoken English. In this video, I'm going to tell you about relative clauses. Not just relative clauses, the full explanation of relative clauses along with their examples and types and blah 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 blah. All checks are going to be discussed today. So listen carefully and let's go through it. First of all, relative clauses. What are relative clauses? What is it known as? How can we define it? We can say relative clauses are the clauses starting with the relative pronouns. So what is relative pronoun? Relative pronoun is nothing. Relative pronoun just is used to elaborate something with any noun. Just like relative clauses are the clauses which elaborates about any word. अब ये कैसे होता है? Let's understand this. Who, that, which, those, where, when. If you see these words in any sentence, but not at the starting. Listen carefully. Not at the starting. If you see these words in middle of any sentence, it means relative clauses are being started. Relative clause is being started. So they are most often used to define and identify the noun which precedes them. In short, जब बेटा आप कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो, जब बच्चे आप जब भी कोई सेंटेंस पढ़ते हो, एक नाउन के पास एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए उस पे एक चिपका हुआ होता है छोटा सा क्लॉज इसमें चिपका दिया जाता है. इसको एडजेक्टिव बोल सकते हो आप. मैं बोल सकता हूँ एडजेक्टिव. क्यों? क्योंकि ये नाउन होता है और नाउन के बगल में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आता है. एग्जांपल सुनो मुझसे. द गर्ल whom you are looking at is my friend. The girl whom you are looking at is my friend. Now you might understand कि the girl whom you are looking at, girl के बारे में इंफॉर्मेशन आया. और the boy in the red shirt is my enemy. The boy who is in red shirt is my enemy. Now you might be watching this. The boy who is in red shirt. The boy who is in red shirt. Boy को define कर रहा है. Boy के बारे में extra information दे रहा है. और जब भी कोई extra जो clause आता है किसी word के बारे में define करता है, information देता है, तो हम उसे बोलते हैं relative clauses. Understood? बहुत easy है. इसको और अच्छे से सेलिब्रेट करके समझते हैं. ये देखिए. इसके टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, सब कुछ आज डिस्कस होगा. Okay, so my science teacher is the person whom I like the most. So who will like the English teacher? Anyways, my science teacher is the person whom I like the most. Will you be able to say my science teacher is the person? मेरे जो विज्ञान के अध्यापक हैं मेरे साइंस के जो अध्यापक हैं वो वही है जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूँ. So it is explaining about ये वही आदमी है ना जिन्हें मैं पसंद करता हूँ. It is elaborating. It is telling extra information about the science teacher. Understood? Next, to many people, the word "whom" is now sounds old-fashioned and it is rarely used in spoken English. Spoken English में अब पुराने टेंस को ये हटा गया. ऐसे पुराने जो रूल्स दिए गए थे, पुराने जो कॉम्प्लिकेटेड रूल्स थे, अब वी आर गेटिंग रीड ऑफ दैट. वी आर नॉट फॉलोइंग इट इन स्पोकन. Whenever we are committing any mistake, new rule is being created, new trend is being created. You might be knowing whenever old type of low like person, no, I'm saying, whenever old type of person used to tear their jeans, it looked like they're from poor family. They're not having enough financial condition to afford a good type of cloth. But whenever you see any person in today's trend, any teared jeans, जिसे हम बोलते हैं क्या, accidental jeans, I think. So whenever you see them, you start thinking like, oh, he's from a rich family, that is using new trend, he is following the new trend. Exactly like this, बच्चा. English के जो पुराने trends थे, they are being lost. We are not following them. New rules are being created. और वो rules जिनका कोई base ही नहीं है, वो start हो रहा है. और पुराने जो रूल्स बनाए गए थे हमारे ग्रामेटिशियन के द्वारा, वी आर इग्नोरिंग देम, वी आर नॉट गिविंग अ स्ट्रिक्ट अबाउट देम. ओके, बट स्टिल आई एम टीचिंग यू दोस रूल्स. एनीवेज, तो अब जो होम का यूज जो आप देखते हो बेटा, ये ऑलमोस्ट खत्म किया जा चुका है, लेकिन फिर भी रियरली वी यूज दैट. रिलेटेड क्लॉजेस के एग्जांपल्स मैं देखता हूं. मैं क्या देखता हूं, आपको दिखाता हूं. डू यू नो द गर्ल हु स्टार्टेड द ग्रेड 7 लास्ट वीक? Do you know the girl who started the grade 7 last week? क्या इस लड़की को जानते हो?
जो ग्रेड 7 में लास्ट वीक स्टार्ट की थी। नाउ यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। कैन आई हैव द पेंसिल दैट आई गेव यू दिस मॉर्निंग? पेन के बारे में इंफॉर्मेशन आ रहा है, पेन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, जो मैंने दिया था वो पेंसिल बताओ ना। कैन आई हैव द पेंसिल दैट आई गेव यू दिस मॉर्निंग? मुझे उस पेंसिल के बारे में बताओ जो मैंने तुम्हें दिया था। इट इज एलैबोरेटिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, a notebook is a computer which can be carried around। नोटबुक एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे आप कैरी अराउंड कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब है कि आप जब भी देखते हो सेंटेंस में which का यूज किया जाता है, ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना कंप्यूटर, किसके बारे में ये सेंटेंस आ रहा है? इसको सेंटेंस तो बोलेंगे नहीं, क्लॉज बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंसेस कैसे आ जाएंगे? एक सेंटेंस में बेटा बहुत सारे क्लॉजेस आ सकते हैं, बहुत सारे फ्रेजेस आ सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस कभी नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ए नोटबुक इज अ कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर होता है? हाँ बेटा, एक होता है। ये स्टार्टिंग हुई थी एप्पल से। एप्पल ने इसे पहली बार निकाला था। छोटा टैबलेट जैसा होता था, उसमें आप ड्राइंग वगैरह कर सकते थे, ब्ला 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 ब्ला। Understood? And notebook is a computer which can be carried around. Which can be carried around जो है ना बेटा, वो कंप्यूटर के बारे में इलैबोरेट कर रहा है। ये जो which can be carried around है, वो कंप्यूटर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और whenever any clause comes after the noun in order to tell the more information about the noun, it is called relative clause. That's damn easy, isn't it? Next. Still, let's go ahead. I won't eat in the restaurant. किस रेस्टोरेंट में नहीं खाओगे? वो स्मोक। उस रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा जहां के लोग स्मोकिंग करते हो। I want to live in a place. मैं वैसे प्लेस पे रहना चाहता हूँ। कैसे प्लेस पे रहना चाहते हो? Where there is a lot to do, जहाँ पे बहुत कुछ करने का मौका मिले। अच्छा, ऐसे प्लेस पे, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन। और ये रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज कहाँ से स्टार्टिंग होती है बच्चे? ये जो रेड आपको दिख रहा है ना, who, that, which, whose, where, when, ये सारे रिलेटिव क्लॉज के स्टार्टिंग पॉइंट्स बोले जाते हैं। और रिलेटिव क्लॉज दो टाइप का होता है। रिलेटिव क्लॉज बच्चे दो टाइप के होते हैं। पहला रिलेटिव क्लॉज होता है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, और दूसरा होता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। लुक केयरफुली हियर। आई हैव रिटन टू सेंटेंसेस। फर्स्टली आई हैव रिटन अ टीचर हु इज टीचिंग इज गुड। अ टीचर हु इज टीचिंग इज गुड। जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छे हैं, सही बात है भाई। तो द टीचर हु इज टीचिंग इज वेरी गुड, अच्छी बात है। बट सेकंड सेंटेंस यहाँ पे जो बेटा दिख रहा है, वो इज टीचिंग, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं ना, वो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं ना, बहुत अच्छे हैं। लेकिन सेकंड सेंटेंस है बेटा, द टीचर whose book I have has lost. The teacher whose book I have has lost. पहले तो मुझे ये बताओ कोई कि बता सकता है यहाँ पे has lost किसके लिए है? सब्जेक्ट मुझे दो दिख रहे हैं, टीचर बुक, टीचर बुक। क्या आप बता सकते हो हैज लॉस्ट किसके लिए है? मैं बेट कर सकता हूं आपका आंसर इनकरेक्ट होगा, लेकिन ठीक है, ट्राई जल्दी से कमेंट करोगे। कर लिया? अब आंसर देखते हैं। ये हैज लॉस्ट टीचर के लिए बेटे। अ टीचर whose book I have, शिक्षक जिनकी किताब, जिनकी पुस्तक मेरे पास है, वो खो चुके हैं, टीचर खो चुके हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो एक टीचर whose book I have has lost। यहाँ पे बेटा मुझे बताने का मतलब सिर्फ इतना था, ये टीचर के बारे में नहीं है, इसलिए नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग इससे बोल सकते हैं, है तो रिलेटिव क्लॉज ही, लेकिन नॉन डिफाइनिंग है। क्यों नॉन डिफाइनिंग है सर? क्योंकि टीचर के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहा बेटा। एक टीचर whose book I have, वो शिक्षक जिनकी किताब मेरे पास है। बेटा फिर टीचर के बारे में क्या बता रहे हो? जिनकी किताब मेरे पास है। नहीं भाई ना, आप टीचर को तो डिफाइन नहीं कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इसलिए ये वर्ड कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग। लेकिन डिफाइनिंग क्या होते हैं बेटे? डिफाइनिंग वो क्लॉजेस होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के बारे में ही बताए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे, नो, मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। देखो, ए टीचर हु इज टीचिंग, वो शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं अच्छे हैं। अब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चे, उस शिक्षक के बारे में मैंने बताया ना, जो पढ़ा रहे हैं वही शिक्षक अच्छे हैं। It simply means when there is a clause which is telling about the subject is known as defining clause, and when there is a clause which tells more information about the subject but does not tell about the subject, it adds more information but it does not define any like subject. Understood?
So it will be called non-defining. Clauses बिल्कुल अच्छे से खत्म हो चुके हैं. Relative clause मैंने आपको समझा दिया. Relative clause में कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं वाला. ये 10th 12th और मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें बिल्कुल पूछा जाता है. तो मेक श्योर दैट यू विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम. इसके नोट्स आपको लिंक कमेंट्स में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में. काइंडली सब्सक्राइब टू विजन स्पोकन इंग्लिश चैनल फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोस जस्ट लाइक दिस. If you are obsessed with grammar, spoken English, audio books, podcast, blah 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 blah, and if you are obsessed with English, must subscribe to Vision Spoken English. This is the best platform. How I am saying, because I am the creator of this. Thank you so much. Have a great day. Take care. Bye.